Namaskar. Good morning, everybody, all my brothers and sisters in Canada, USA, Latin America, and all the countries around. I hope you're taking care of yourself. आप अपना ध्यान रख रहे हैं and you are keeping your mind and your body with wellness. Yoga, meditation, naturopathy, nutrition, organic food. You are consuming all that which is good for your body and mind. Please look after yourself, look after your friends, your relatives, your neighbors, your community, your civilization. सबका ख्याल रखिए, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहिए, अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए और सब परंपराओं से आगे लेकर चलिए इस संसार में आपका योगदान क्या हो सकता है. I also extend a very hearty welcome after a wonderful lunch to all my brothers and sisters in United Kingdom and the neighboring places wherever you are. I hope you had a wonderful lunch, vegetarian lunch. You enjoyed yourself very well. And before you go for your evening tea, let's enjoy together for an hour or so with this particular webinar, which we bring to you Monday to Friday, Indian Standard Time, 7 to 8 p.m. every day. Monday to Saturday, we are on education. Monday to Friday on the education. And Saturday, we talk exclusively on your wellness. And of course, Sunday morning, we have got 9:30 to 11, a special program, which we share all of us. So, ladies and gentlemen, while extending a very hearty welcome to our distinguished guest this evening, we are going to proceed with this webinar. And at the same time, I extend a very warm welcome, namaskar, pranam, vanakkam, wherever you are in India. I extend a very hearty welcome to each one of you. And at the same time, all my brothers and sisters, those are in Southeast Asia, ASEAN, because all of you, I know it's about 10:30, quarter to 11, but along with my president, you all join me from different countries. We are indebted to you. And together in this journey, in the COVID-19, in this lockdown, in a positive way, we are trying to spread the positive energy so that how can we take the whole universe as one family where we try and see how to share happiness and difficulties of each other. So, ladies and gentlemen, before I proceed with today's deliberations, and I get my distinguished guests to share their wonderful experiences, their richness, their wisdom, because today we are going to talk about Indian genius, our tradition of wisdom. Before we come to Bhartiya Pratibha and Paramparagat Buddhimatta, before we come on to that, I would like to share a few slides with you because each day we get lots of new participants from the world over. मैं आप सब लोगों से अनुमति ले रहा हूं, दिल से मैं मातृभाषा में बात करना चाहता हूं, हिंदी में बात करना चाहता हूं, लेकिन बहुत सारे लोग विदेशों में हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो शायद मेरी भाषा को उस तरीके से, मेरे जेस्चर्स को तो समझ पाएंगे, मेरी हम्बलनेस को और मेरी कर्टसी को तो वो समझ पाएंगे, लेकिन शायद भाषा के शब्दों को मैं उन तक नहीं पहुंचा पाऊंगा. सो मैं लिबर्टी लेते हुए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का इस्तेमाल करते हुए I'll proceed in this journey. Let me flip through few slides for the benefit of all those who have joined for this program today for the first day. I'm very happy. हमारा ख्वाब है कि हम 15 अगस्त 2020 भारत के स्वतंत्रता दिवस तक तकरीबन 10 लाख टीचर्स और 10 लाख यूथ को इस प्रोग्राम के माध्यम से अपने साथ जोड़ लेंगे. हाउ टू मेक एजुकेशन रेलेवेंट, हम शिक्षा की प्रणाली को प्रासंगिक कैसे बनाएं, किस तरीके से लेके चलें, कैसी शिक्षा चाहिए. दैट इज द बेसिक फोरम एंड दैट इज द बेसिक विजन with which we have taken this wonderful journey from 5th of June. Let me share quickly few slides with you so that all of us, we are on the common frequency. Let me just go on to where is the presentation, where is the slides. Here comes the presentation and we just take on from here and well, by the time the technical team put the presentation into order and we proceed with the next slide, let me just share with you what is the purpose of this entire journey.
Why are we having this particular exercise? Why are we having these webinars each day? And what do we want to achieve? What do we want to get from this entire program? Ladies and gentlemen, education got to have a relevance each day. Education got to have a relevance with all of us, with our day-to-day living. जो जीवन हम जी रहे हैं, जो पढ़ाई हम करते हैं, जो शिक्षा हम लेते हैं, जो शिक्षा हम ग्रहण करते हैं, क्या उसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल है? क्या उसकी एप्लीकेशन है? क्या उसका प्रैक्टिकल पार्ट है? क्या वो शिक्षा हमें लॉकडाउन के पीरियड में खासकर हम सब ने ये महसूस किया होगा? आइए चलते हैं, जब हम इस चीज की बातचीत कर रहे हैं तो कोविड-19 के टाइम में, इस पेंडेमिक में, almost 850 million children world over, half the world students population, they are at present away from their school, colleges and universities, and nobody knows how long this pandemic will continue. Nobody knows when the vaccine will come. Nobody knows when the solution would be. So thereby the education system which is to be empowered, क्योंकि क्लासरूम से हम डिजिटल पर जब बाहर आ गए हैं तो नए पेडागोजीज, नया एंड्रोगोजीज और नई सिस्टम्स को हम जब लेके चल रहे हैं, वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट में जो वो कहते हैं कि पर्पस ऑफ एजुकेशन क्या है, उनके जहन में, उनके सिस्टम में है कि सबसे पहले एजुकेशन का पर्पस है इकोनॉमिक पर्पस। इकोनॉमिक्स बेनिफिट होने चाहिए। जो भी शिक्षा की प्रणाली है उससे एजुकेशन में हम किस तरह से बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, that is the first preference given, and thereafter comes social, cultural and personal. But as far as Indian education is concerned, when we talk about India's Sanskriti, our own civilization, our own culture, our own people, Vasudhaiva Kutumbakam, culture, हमारी संस्कृति, that gets the first precedence and that gets the first place in the entire education fraternity and education system. After culture comes social values, our norms, our etiquettes, our manners, our gesture, everything related to our day-to-day living. उसके बाद आता है कि economic angle, जीवन निर्वाह करना है तो किस तरह से होना चाहिए, मिनिमम में हम सब लोग कैसे बांट के एक दूसरे की मदद करके, and of course fourth part is the personal purpose. Why should I study a particular subject? At this point of time, all the teachers, educators, principals, vice chancellors, directors, counselors, wherever you are, a great support is being extended by everybody, and you are trying to reach out to every child wherever they are. They are in metros, they are in rural areas, they are in semi-urbans, they are in interiors, they are in far-flung areas. आप लास्ट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा बेसिकली रोज की तरह आज भी एक निवेदन है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी से और उनकी पूरी टीम के साथ, और खासकर रविशंकर प्रसाद जी जो हमारे बेसिकली आईटी और टेलीकॉम के मंत्री हैं। हम आपसे सिर्फ एक ही निवेदन करना चाहेंगे कि हम किसी तरीके से वाईफाई की सीमलेस कनेक्टिविटी पूरी कंट्री में दे दें और बच्चों को बेसिक गैजेट्स जिससे वो अपनी पढ़ाई लिखाई कर सकें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय हमारे वित्त मंत्री ने उस दिन अनाउंस किया और बताया कि नए टेलीविजन चैनल्स आ रहे हैं, पहली से 12वीं तक की शिक्षा के लिए अलग अलग चैनल्स की व्यवस्था की जा रही है, कम्युनिटी रेडियोस आ रहे हैं, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सबकी व्यवस्था की जा रही है। उसमें हम और आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ये हमारा एक समर निवेदन है। इसकी बहुत जरूरत है, जिसको अगर हम आगे लेके चलेंगे तो सभी बच्चों को फायदा होगा। एजुकेशन में बहुत सारे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, उसके अंदर गवर्नमेंट भी है, हमारी ई एजुकेशन पॉलिसी भी है, हमारे टीचर्स और एजुकेटर्स भी हैं, हमारे कॉर्पोरेट भी हैं और पेरेंट्स की भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अल्टीमेटली हमको यूथ को समझना है, यूथ क्या चाहता है। अगर आप डॉक्टर सुगाता मित्रा, ये भारत के हैं, एनआईआईटी से, इन्होंने आईआईटी दिल्ली से अपनी पढ़ाई लिखाई की और मैसेच्यूसेट्स में आजकल यूके के अंदर है, एमआईटी के अंदर इन्होंने बहुत सारी रिसर्च की। इनकी एक वीडियो आप जरूर देखिएगा, बहुत सारी वीडियो अवेलेबल हैं और जिसके अंदर ये कहते हैं ये कि कैन किड्स टीच देमसेल्फ। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट। इन्होंने एक दीवार के अंदर 2 कंप्यूटर लगा दिए, वहां पर कोई टीचर नहीं था, एक कैमरा फिट कर दिया और रोजमर्रा 1 महीने तक बच्चे वहां पर आते रहे, कंप्यूटर के साथ प्ले करते रहे, देखते रहे। 1 महीने के बाद का जो एनालिसिस था वो माइंड ब्लोइंग था और वो ये जानना था
कि बच्चे अपने आप बहुत सारी चीजें कैसे सीख सकते हैं, एवोल्यूशन ऑफ द लर्निंग एनवायरनमेंट। इसी के साथ साथ जब हम भारतीय परंपरा, भारतीय शिक्षा की बातचीत करते हैं, कल हमारी डेलिब्रेशंस रही थी नालंदा के ऊपर, और हमने इंटरनेशनल, जो इंटरनेशनल वर्ल्ड की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, उसके बारे में बहुत सारा विचार विमर्श हुआ, बहुत सारे नए विचार आए from the world over. The people those joined us yesterday, they never knew what was Nalanda University, what was the richness of the Nalanda University. And our veterans and our scholars, and particularly our distinguished guest yesterday, they all deliberated and discussed what were the treasures of the knowledge, the research, and the innovations which were available in that university. Imagine 10,000 students from the world over getting free education in the university with 2,000 acharyas. किसी भी संस्कृति का अगर पतन करना है तो सबसे पहले उसकी शिक्षा को खत्म करना। मैकॉले की मैं आजकल बातचीत नहीं कर रहा हूं, ना ही आज करूंगा, आगे सब्सिक्वेंट प्रोग्राम्स में आएगा जब हम इसको लेके चलेंगे। भारत को पुनः विश्व गुरु बनना है और भारत का हमें सम्मान करना होगा। हमारे टीचर और हमारे एजुकेटर्स ही इस एजुकेशन सिस्टम को आगे लेके चलेंगे। आदरणीय मुकुल कनितकर जी की किताब को मैं आजकल पढ़ रहा हूं, स्वामी विवेकानंद पर जो उन्होंने लिखी है, और बहुत सारे विचार जो मैंने उनके सुने, जाने, समझे। स्वामी विवेकानंद जी की क्या सोच थी, क्या चलता था, किस तरीके से था। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, वर्ल्ड ओवर, दिस इज अ कॉमन स्लाइड and this is the best slide which I wish to share with each one of you. इस स्लाइड को अगर आप देखें तो there are two triangles. One is the straight triangle and one is the reverse triangle. What is happening in the education system? The educator and parents are on the top and the youth is right at the bottom. When you have got that particular sharp portion, you cannot make this triangle rest on that. There is no base, there is no bottom, there is no foundation. There is no values being given that way. It's only completing syllabi, contents, curriculum and all that. और सबसे बड़ी बात ये है, क्या हम बच्चे का बचपन छीन रहे हैं? What's lost when we rush the kid through childhood? हम बच्चे की उस बचपन में से वो सारी चीजें निकाल लेते हैं। इसी ट्रायंगल को रिवर्स कर दीजिए, यूथ को एम्पावर कर दीजिए, यूथ को ऊपर ले चलिए, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कीजिए, बच्चे को सीखने दीजिए, क्रिएटिविटी बाहर आने दीजिए। बाहर के सिस्टम्स की मैं बातचीत नहीं करना चाहता, किस कंट्री के एजुकेशन सिस्टम में क्या हो रहा है, लेकिन भारत की जब शिक्षा की प्रणाली और शिक्षण, हमारा जो कुछ भी सिस्टम है, उसके अंदर पेरेंट्स और एजुकेटर की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी बच्चे की लाइफ बनाने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमको ये समझना होगा बच्चे क्या चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे आज के इस प्रोग्राम में from the world over, lot of kids have joined this program today. They want to understand what exactly is Indian genius, what is the tradition, what is the wisdom, what we are going to talk today over here. A lot of youth have joined, and my great welcome to all the youth from the world over, and particularly to the youth from the Northeast, from Tripura, from Manipur, from Meghalaya, from Assam, from Arunachal, from Sikkim, from Nagaland, all the places, wherever you have joined us. Mizoram children are also there. I'm so grateful to all of you. You are most wonderful people because future belongs to all of you. You are the one, those are going to take the civilization ahead. So ladies and gentlemen, जैसा मैं शुरू में आपसे कह रहा था, Monday to Friday we talk about education empowerment, making education relevant. लेकिन हर शनिवार को सैटरडे एट द सेम टाइम 7 to 8 PM हम आपसे बातचीत करते हैं आपकी सेहत के बारे में, आपकी वेलनेस के बारे में, हमारे आयुष के बारे में, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बारे में, योगा के बारे में, मेडिटेशन, नेचुरोपैथी, न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, हेल्थ, हैप्पीनेस, ह्यूमर, होलिस्टिक लिविंग. I come from a beautiful state in India called Punjab, and when I talk about Punjab, my mother is 90 plus. Today also she sings only positive romantic songs all the times, and I have learned from my mother that the best medicine for you in life is music therapy. Listen to songs, listen to positive songs, beautiful songs, encouraging songs, patriotic songs, and songs which brings in vibration and energy into you. That's what is needed, ladies and gentlemen. Remain positive, positive, positive.
Your energy has to be positive. That part has to be seen. 70 साल की एज में आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन मेरी एनर्जी वो 20 साल के बच्चे जैसी है, because I'm passionate. I enjoy every moment of life. Now, there's a beautiful series. I was talking to both the professors. Those are going to share wisdom this evening. This morning, when I was talking to Professor Karamjeet Singh Ji, yesterday and today, it was such a wonderful to Professor Gurpal Singh Ji and Karamjeet Singh Ji. There is a product from India. There is a Professor Satinder Dhiman. He is a product of Punjab University from India, gold medalist. He was the youngest lecturer and a professor in India. He went on a Rotary Club, basically exchange program to America. And Americans told, why don't you stay back over here? You are doing so well. He got the Best Management Professor Teacher Award. And 4 years, he was the president of our chamber, ICSI, International Chamber for Service Industry. And what we learned from him is, अगर एजुकेशन को एम्पावर करना है तो उसको अपनी संस्कृति के साथ दोबारा से जोड़ना होगा। जीवन को संचालन कौशल की जब हम बातचीत करेंगे तो शिक्षा को प्रासंगिक बनाने के लिए, and you would be so happy to know, ladies and gentlemen, every Sunday morning 9:30 to 11 he comes with us on the webinar, and 1.5 hours he talks about India's epics, India's culture, India's wisdom. And we are starting a wonderful series from this coming Sunday with him. That is going to be Shrimad Bhagavad Gita in today's education, living a fulfilled life. And our focus is going to be global education has to be learning centric. Youth, Yuva Pidi. That is something is the total focus. So this is coming on Sunday. Now, ladies and gentlemen, I'm thankful to Dr. Varinder Garg ji. आज का भी जो प्रोग्राम है इसका पूरा आयोजन संयोजन इस पूरे कार्यक्रम को बनाने में रूपरेखा में उनका बहुत बड़ा सहयोग है। डॉक्टर वरिंदर गर्ग जी ने 5 जून को हमारे साथ श्री राम गोपाल जी के साथ जो हमारे प्रचारक हैं पर्यावरण के, उनके साथ मिलके और भारतीय शिक्षा मंडल से दयानिधि जी, हमने 5 जून को अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया, Making Education Relevant campaign on World Environment Day, 5th of June 2020, and we will be continuing this journey till 15th August 2020, till India's Independence Day. And our focus is with education when we are making it practical. जो next समस्या संसार में आने वाली है वो आ रही है water crisis. We have to save water, every drop of water. तो हम अपनी इस पूरी सीरीज के अंदर जल संरक्षण की बातचीत भी कर रहे हैं और शिक्षण संस्थानों में ऑफ कोर्स, लेकिन इस समय लॉकडाउन है तो घर से ही ये क्रिया शुरू होगी। ये स्लाइड देखिएगा। एट प्रेजेंट वी ऑल आर एट आवर होम्स, सो पेरेंट्स एंड यूथ, मे वी मेक ए हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, लेट्स वर्क इन द डायरेक्शन, लेट्स स्टॉप मिसयूजिंग द वाटर एनीवेयर, लेट्स सेव एवरी ड्रॉप ऑफ द वाटर। हर जगह एक एक बूंद पानी की बचाइए जहां से भी बच सकती है। और जब हमारे शिक्षण संस्थान खुल जाएंगे लॉकडाउन के बाद, उसके बाद हमारे स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, पॉलिटेक्निक में, ITIs में, जहां जहां पर हम हैं, एक एक बूंद हमें पानी की बचानी है। और हमने भारत के शिक्षा मंत्री को एक पत्र भी भेजा है, निवेदन भी किया है, सम्र निवेदन किया है। जिस तरह से टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, एयरलाइंस, फैशन डिजाइनिंग आपके वोकेशनल सब्जेक्ट है, water conservation should be one of the vocational subject in 11th and 12th. बच्चों को प्रैक्टिकल पता होना चाहिए कि हमने वाटर कैसे सेव करना है। हमारे ICSI चेंबर, इंटरनेशनल चेंबर फॉर सर्विस इंडस्ट्री, जो NRIs के साथ वर्ल्ड ओवर जुड़ा हुआ है, and I'm so grateful to all my presidents and advisors from the world over. Those are a part of this particular webinar, and you are bringing the Facebook, you are bringing the watch parties. You're trying to increase people more and more, because the wisdom has to be shared. So, ladies and gentlemen, our chamber last 2.5 months, the research what we have done is we have to get back to the basics. जीवन की basics में वापस आना पड़ेगा. B2B, which was business to business, is now back to basics. When we talk about back to basics, सबसे पहले अपने घर में, अपने घर की छत पर, अपने बाहर की क्यारी, अपने आसपास जो भी सब्जियां हम उगा सकते हैं
कोशिश करें कि हम सब्जियां उगाएं। कोई पता नहीं है कि ये चीज कब तक चलेगी, और ये ना हो कि कहीं फिर दोबारा किसी तरीके से हमें इस चीज का और ऐसी किसी और चीज का सामना करना पड़े। सो वी हैव टू स्टार्ट लिविंग सेल्फ डिपेंडेंट। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उस दिन आत्मनिर्भरता की बातचीत की। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू, आवर चेंबर वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू यू that let's start working in the direction agriculture and animal husbandry both are very important. उसी के साथ साथ ये सब चीजें करते हुए अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए, वेलनेस का भी ख्याल रखिए, योगा करिए, मेडिटेशन में आइए, नेचुरोपैथी में आइए, अच्छा भोजन खाइए, स्वादिष्ट यानी के ऑर्गेनिक। और मैं तो बहुत सारी किताबें आजकल पढ़ रहा हूँ, 3 घंटे से पहले का जो भोजन बना हुआ है वो शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो मैंने ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है, और इन दिनों में सिर्फ एक समय भोजन करता हूं दोपहर को, एंड आई एम मोर हेल्दी, आई एम मोर हैप्पी, एंड दैट इज द वे द थिंग्स आर। Third part is going to be digital education. We all have to pick up. Education has to be empowered digital way. कभी भी हम जनवरी फरवरी वाले माहौल में और मौसम में वापस नहीं जा पाएंगे। And this has become more transparent. There is more accountability. We know who is teaching what. We know that who is imparting what kind of an education. What is the level of education. सारी चीजों का दारोमदार बेस और फाउंडेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मिनिमम इस्तेमाल कीजिए, मिनिमम में रहिए, खुद भी खुश रहिए और बाकियों को भी खुश रखिए। बी टू बी, बैक टू बेसिक्स इज द रिसर्च। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे मस्तिष्क में बहुत सारी गरारियां चलती रहती हैं और बहुत सारे यंत्र अंदर काम करते रहते हैं। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव डोपामिन्स निकलते हैं, और मैं तो ये सोचता हूं और हमेशा यही करता आया हूं। 35,000 बच्चे जो नॉर्थ ईस्ट के मेरे साथ पिछले दिनों में जुड़े रहे और जिनको मैं आगे लेके चलता रहा पिछले 26 साल के इस जीवन काल में, मैं एक ही बात समझ पाया हूं, whatever human mind can conceive and believe it can achieve. आपको सिर्फ संकल्प लेना है कि ये मुझे करना है। राहें बनती जाएंगी, खुलती जाएंगी, चलती जाएंगी, और एक दिन हम अपनी मंजिल जो हम पाना चाहते हैं वहां तक जरूर पहुंचेंगे। लेट्स कम टुगेदर। ग्लोबल एजुकेशन एम्पावरमेंट, इंटरनेशनल चेंबर फॉर सर्विस इंडस्ट्री। Our web portal is www.icsi.india.in. You can also send your suggestions, your CVs, your biodatas. अगर आप पैनल डिस्कशन में आना चाहते हैं तो innovation@icsi.asia पर भेजिए। नीचे व्हाट्सएप नंबर भी है जिन पे आप संपर्क कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ, लेडीज एंड जेंटलमैन, let me take a privilege and let me fold my hands and let me extend a very hearty welcome to our distinguished guest this evening. We have got Shri Pramod Kumar ji, the Prant Pracharak, Punjab. We have got Professor Karamjit Singh ji. He's a registrar, Punjab University. Professor Gurpal Singh ji, he's once again so much, I was talking to him. I will let you know when we introduce. There was so much of unveiling which he gave it to me. We have got Dr. Varinder Garg ji, who's the radiologist. He's a principal investigator of the CIBIOD, and he is the person who has brought and is the anchor of this entire program today. With these words, ladies and gentlemen, let me roll this evening and let me get our distinguished participants and dignitaries this evening for this particular program. Let me start this evening in a very humble way with Professor Karamjit Singh ji. Professor Karamjit Singh ji is Honorable Registrar with Punjab Technical University. And let me also share, he has got deep alliances with Professor Satendra Dhiman in America. When we were talking to each other, he gave me a lot of inputs. आज का जो विषय है, that is Indian genius, a tradition of wisdom. भारत की जो प्रतिभा है उसकी परंपरागत बुद्धिमत्ता को हम आगे कैसे लेके चलें, विवेक को कैसे जागृत होना होगा, इस सब चीज को हम आगे लेके चलें। तो इन शब्दों में मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रोफेसर करमजीत जी से कि वो अपने विचार हमारे साथ करें। अपने माइक को सर अनम्यूट कर लीजिए।
Sir, you have to unmute your mic. Unmute your mic, sir. Sir, is it okay? Yes, sir. Please go ahead. Yeah, please. माननीय प्रमोद जी, प्रांत प्रचारक, वीरेंद्र जी, मेरे दोस्त गुरपाल जी और इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ सर्विस इंडस्ट्री से डॉक्टर गुलशन जी, मेरा सौभाग्य है कि मुझे गुलशन जी ने मौका दिया कि मैं सभी के साथ बातचीत कर सकूं और रादर मैं सभ्यताओं को सीख सकूं, क्योंकि प्रमोद जी जो इस सेमिनार वेब सेमिनार की अध्यक्षता कर रहे हैं, प्रमोद जी से जब भी मैं मिलता हूं तो बात करता हूं तो मुझे अपनेपन का एक एहसास होता है। उनके चेहरे पर शांति और मुस्कुराहट सदा रहती है और वीरेंद्र जी खास करके मेरा नाम सजेस्ट कर देते हैं, तो उनका मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं। यस, और सुंदर दिमाग जी पता नहीं आज यहाँ पर हैं या नहीं हैं, मेरे बहुत ही मित्र हैं और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ स्टूडेंट डेज से, और वो हम एक बार अमेरिका मिले भी थे। with these words, let me start. Let me confess in the beginning that I am neither a scholar of English language nor expert in this area. However, little I know of it, I would like to share with you. आज का विषय है भारतीय प्रतिभा, परंपरागत बुद्धिमत्ता और अंग्रेजी में इंडियन जीनियस, a tradition of wisdom. My humble submission is that genius is a Western concept which is value free, though it suggests extraordinary talent which may be good or bad. But genius cannot be synonymous with our own word pratibha. Even Raman, Hitler could be called genius, but they were not symbol of pratibha. Pratibha means prakash, that is knowledge. Knowledge with enlightenment, always grounded in ethical values. I understand that dialogue on this issue is very important in the present context. आज हम समय के उस कगार पर खड़े हैं जहां से हमें भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना है और भारत में पुनर्जागरण का आह्वान करना है। इस संदर्भ में वेद, पुराणों व उपनिषदों का अध्ययन करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भारतीय दर्शन का एक खाका खींचा और उन्होंने एक आत्म मानववाद की बात कही। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि पश्चिम का विचार सिर्फ ज्ञान इंद्रियों पर आधारित है, जबकि पूर्ण ज्ञान के लिए प्रज्ञा की आवश्यकता होती है। भारतीय परंपरा उपनिषदों और दर्शनों की परंपरा है। We believe in dialogue, respect the opinion of others. We have tolerance, humility, and purity of mind. These are our virtues, but it does not mean that we are weak. Because if good qualities, I believe, कमजोर हृदय में जाती हैं, तो गुण भी वीक हो जाते हैं। हमारे सिख गुरुओं ने अपनी वाणी और अपने जीवन में से हमें जीवन का रास्ता बताया है। असल में पश्चिम की यात्रा बाहर मुखी है और हमारे गुरु हमें अंदर की यात्रा सिखाते हैं। टू अस नॉलेज इज एन इनवर्ड जर्नी। गुरु नानक देव जी मन को जीतने की बात करते हैं। मन जीते जग जीत। और विद्या के बारे में गुरु जी कहते हैं, विद्या विचारी ता परोपकारी, यानी कि सा विद्या या विमुक्ते। एजुकेशन वो है जिसके विचार से, समझ से हम दूसरों का भला कर सके। 18 पुराणों में ऋषि व्यास जी ने 2 बातें कही, परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़ितम। दैट इज helping other is a virtue and hurting other is a sin. Our focus of education is to get wisdom and thereby internal happiness. Sanskrit श्लोक guides us, विद्या ददाति विनयम। मैं पूरा नहीं पढ़ता,
लेकिन मीनिंग thereby, because I was told that many friends they may not understand also. Gulshan ji briefed me earlier. Vidya Dadati Vinayam, I'm just explaining it. Knowledge gives humility. Humility leads to capabilities. Capabilities helps in acquiring wealth. Wealth leads to righteousness, which ultimately brings happiness. That is our goal. To make education relevant, I have culled few points from Sri Guru Granth Sahib Ji for sharing purposes. These points will throw light as to how Indian philosophy, Indian thought process, and Indian lifestyle is different from the West. These points are also source of inspiration for all of us. First point, focus. The focus of Western intellect, thinking, and knowledge is on I and me. As French philosopher Descartes summarizes the Western thinking in the word, and the quote is, "I think, therefore I am." I am repeating, "I think, therefore I am." Whole thing is revolving around I, self. But our gurus are talking about ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ. We talk about the welfare of all. जैसे कि सर्वो भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निर्माय, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्. Meaning thereby that our idea is that none should be sad. Everybody should be happy. This is the first point. Second point is your conduct, achar, rather sadachar. We believe in ethical life. They focus on accumulation of wealth. In Gurbani it is written, Guru Nanak Sahib said, सच बहुत इंपॉर्टेंट है. Truthfulness is very good. सच्चों उरे सब को उच्चा सच आचार. Your conduct is at a higher pedestal, higher level than the honesty. If I read Sanskrit, achar parmo dharman, achar parman tapan, achar parman jnanam, acharat ki na saite. You know, right conduct is highest religion. It's the greatest penance, greatest knowledge, and ultimately what can't be achieved through right conduct. This is the second sutra, second point. Third thing is that sahajta, samta, सुख दुख, मान अपमान, उस्तत निंदा, ना डरना ना डराना, ये हमारा इथुस है. तो इससे चेहरे पे शांति आती है. जब मैं बात कर रहा था कि प्रमोद जी की बात मिलने से मुझे लगता है कि चेहरे पर उनकी शांति है. तो शांति इसलिए है कि इंडियन कल्चर को उन्होंने समझा है. एक बहुत बड़ी बात है, गुरु तेग बहादुर जी ने कहा है कि ना डरना है ना डराना है, पै कहू को देद है, न पै मानत आन, कौन नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान. वो ज्ञानी है, वो समझदार बंदा है जो न डरता है ना डराता है. Education is not just reading, but what is important? Its impact. What is important? Output what you are getting, which is most important. कबीर साहब कहते हैं गुरु ग्रंथ साहब में, क्या पढ़िए, क्या गुनिए, क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने क्या होई, जे सहज न उपजो सोई. तो सहज इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चौथा बिंदु, अब इन्वायरमेंट की बात हम कर रहे हैं. द फोकस इज ऑफ वेस्ट इज द कंक्वेस्ट ऑफ नेचर, बट इंडियन इथोस द फोकस इज ऑन कंक्वेस्ट ऑफ सेल्फ. हमारी संस्कृति में पक्षी, पशु, पहाड़, हवा, अग्नि, इनकी पूजा करी जाती है. यहां तक कि जहरीले सांप को भी हमारे देवताओं ने गले में डाला है. गुरबानी में इसको इंपॉर्टेंस देते हुए उन्होंने ये कहा है, पवन गुरु, पानी पिता, माता तरत मत. यानी कि तीन इंस्टीट्यूशंस हैं, एक माँ, एक बाप और एक गुरु, जिनको हम लोग पोल्यूट नहीं कर सकते.
तुलना दे दी गुरु के साथ, किसको? हवा को। हम लोग विकास कर रहे हैं, मैं कई बार सोचता हूं कि ये विकास है कि विकास है। विकास क्या है? जंगल काटो, कंक्रीट के महल बनाओ, ये विकास है, डेवलपमेंट है। लेकिन हम इंडियन नीतियों में क्या है? विकास के साथ विकास करना है। विकास क्या है? गुरु नानक साहब कहते हैं, नानक भगता सदा विकास। विकास का मतलब यह है कि खेड़ा, खुशी, सबदा भला। अगर हम इन्वायरमेंट की सुरक्षा करेंगे तो हमारी अपने आप सुरक्षा होगी। अगर हम इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय करेंगे, नेचर से दूर भागेंगे, तो नेचर हमें हमारे सामने है। अगला बिंदु है आहार विहार। प्रमोद जी ने कहा कि ये बहुत विशाल टॉपिक है, इसलिए मैं बहुत टाइम के हिसाब से जल्दी जल्दी कर रहा हूं। आज जो कोरोना वायरस चल रहा है, वो कहा हुआ जैसिक भोजन प्रचलित है। देखो, 3 तरह के भोजन हम कहते हैं, राजसिक, सात्विक और तामसिक। उनमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन हम लोग फोकस करते हैं सात्विक भोजन के ऊपर, वेजिटेरियनिज्म के ऊपर। गुरबाणी में क्या लिखा है? जित खाद्या तान पीड़िए, मन में चले विकार। आपकी बॉडी खराब हो जाए और मन में विकार चल जाए, उस खाना नहीं चाहिए। और गीता में कहा गया है, युक्त आहार विहार से मुक्त युक्त चेष्टु कर्मसु, यानी कि एफर्ट्स आर इंटररिलेटेड विद व्हाट वी ईट, व्हाट वी थिंक एंड व्हाट वी डू। संयम में खाने को कहा है। गुरु नानक साहब कहते हैं, फिट इवे है जीव्या, जित खाया बधाया पेट। नेक्स्ट बिंदु, मैं एंजाइटी की बात कर रहा हूं। आज समाज में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, टेंशन है, सुसाइड है। तो इसमें देखो, चिंतन करना चाहिए, लेकिन चिंता नहीं करनी चाहिए। गुरु नानक साहब ने बात खत्म कर दी। गुरु नानक साहब कहते हैं कि कर्म करो। देखो, एक मैं थोड़ी सी बात यहां पर करना चाहता हूं कि जो सो कॉल्ड वेस्टर्न में जो रिलीजन हुए हैं, अब्राहमिक रिलीजन बोलते हैं, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी या जुदाइज्म, और जो ईस्टर्न में हुए हैं वो हमारे हिंदू, बुद्ध और जैन और सिख की बात हम करते हैं। वी बिलीव इन रीबर्थ। और ये बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है कि कर्म थ्योरी ये है, जो हम बीजते हैं वो हम निकालते हैं। तो चिंता जो है वो गुरु नानक साहब ने मना करी है। नानक, चिंता मत करो। चिंता ताकि ये, हम विश्वास करते हैं भगवान के ऊपर। चींटी चींटी ते कुंचर स्थूला, सब पर कृपा देश का फूला। तो बड़ी एक ब्यूटीफुल श्लोक है कि चिंता और चिता का मुकाबला करा हुआ है। संस्कृत में गुलचंद जी है, चिता चिंता समापरोक्ता, बिंदु मात्र विशेषता। एक बिंदु का फर्क है सिर्फ, लेकिन सजीवन दैते चिंता, वरी बरिस अलाइव। सजीवन दैते चिंता, निर्जीव दैते चिंता। यानी कि चिता तो फायर पर लगती है, डेड बॉडी पर लगती है, लेकिन चिंता जो है वो। छोटा सा बिंदु बताऊंगा मैरिज के बारे में। Marriage is, as an institution, is a, I don't know, it's a failure or not, but incidence of divorce is on the rise. Why? Due to individualism. गुरबाणी में क्या लिखा है? शादी का मतलब क्या है? What they are saying? तान पिर एना आखियन, तान पिर मीन्स हस्बैंड वाइफ। तान पिर एना आखियन, बहन इकट्ठे सोए, एक जोत दोए मूर्ति, तान पिर कहिए सोए। वो है आपका मैरिज का। अब मैं 2 बातें करके अपनी वाणी को विराम करूंगा, जल्दी से, क्विकली। हमारी जीवन की ये बहुत ही लंबा चौड़ा टॉपिक है। हमारी जीवन में हमें हमारे गुरुओं ने क्या बताया है? सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, मैं एक छोटी सी तुक बोलूंगा, फिर मैं रेसिपी बताऊंगा कि करना क्या चाहिए। गुरु तेग बहादुर जी अपनी वाणी शुरू करते हैं, साधो मन का मान त्यागो। आगे कहते हैं, काम क्रोध संगत दुर्जन की, आते अहनिस भागो। सुख दुख दोनों सम कर जाने, और मान अपमाना, हरक सोगते रहे अतीता, तिन जग तत् पछाना। उस्तत निंदा दो त्यागे, खोजे पद निर्वाणा। जन नानक मुश्किल है, जन नानक ये खेल कठन है, किनु गुरमुख जाना, उन्हों मैं गुरमुख जाना। खैर मैं डिटेल नहीं आंदा,
I will not speak explain it. मैं एक with small slok I will be completing my discussion. ये बात आती है कि बंदे का जीवन जो है सुखी कैसा रहे. मैंने बोला है कि हमारे जो धर्म है पूरी बर्थ में विश्वास रखते हैं. गीता में कहा है कर्म करो फल की इच्छा मत रखो. मत रखो का मतलब उनका ये है, अभिप्राय ये है कि जो फल आपको मिलना है वो मिलेगा, आपके कर्मों का फल आपको मिलेगा मिलेगा. तो उसके लिए गुरु ग्रंथ साहिब में जो बात है, हमारी चाहत क्या है? उठत सुखिया बैठत सुखिया. हम चाहते हैं हमें सुख मिले. वी वांट हैप्पीनेस. वी वांट दैट वी शुड बी स्ट्रेस फ्री. उठत सुखिया बैठत सुखिया पौ नहीं लागे जे ऐसा बुझिए. अगर ये समझो ना बात, आपको कोई डर नहीं लगेगा. वो समझना क्या है, 2 लाइनें. राखा एक हमारा स्वामी, वो भगवान हमारा स्वामी है, और सगल कटा का अंतर्जामी, क्योंकि ही इज वेरी बैलेंस्ड. उसको सब पता है, उसने आपको कर्मों का फल देना है, आपके दोषों को दूर करना है, एक बाप की तरह आपको प्यार करना है. राखा एक हमारा स्वामी. अगर ये 2 बातें समझ जाओ कि भगवान है, हमें दिख रहा है. एक ओंकार कुरान साहब ने कहा 534 बार गुरु ग्रंथ साहब में एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आया है. एक परमात्मा है और उसका प्रसाद है, उसकी सारी कृपा है. अगर ये 2 बात समझ जाते हैं, राखा एक हमारा स्वामी सगल कट्टा का अंतर्जामी, हुआ है क्या? फिर सोए अचिंता जाग अचिंता. टेंशन फ्री, कोई टेंशन नहीं रहेगी. जहां कहां प्रभ तू वर्तंदा, यानी कि गॉड विल बी एवरीवेयर. देयर विल बी, यू विल स्लीप विद a peace mind and you will wake up with a peace mind. and एंड की होगा कार सुख वस्या. कार मीन्स your house also and your mind also. कार सुख वस्या, बाहर सुख पाया. कहो नानक गुरु मंत्र दृढ़ाया. तो ये जो सरगुण है निर्गुण है, ये सारी बातें जो हैं, तो मैं बहुत समय नहीं लूंगा. मैं इनके साथ ही गुलशन जी का बहुत बहुत, गुलशन जी की मुस्कुराहट जो मैं देख रहा हूँ, वाकई ये 70 साल के नहीं है, ये 20 साल के ही हैं. शायद हम अपनी उम्र गलत बता रहे हैं. तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you, sir. Thank you very much. Ladies and gentlemen, it was a pleasure to hear the views and the wisdom of Professor Karamjeet Singh Ji, Registrar, Punjab University. Wonderful thought, sir. Helping others is a virtue. Knowledge gives humility, and focus is on I and me in the Western thinking. At the same time, everybody should be happy all the times. You touched environment also, Sattvic Bhojan also, and we believe in rebirth and how to overcome anxiety, depression, stress, and couple of other things which you touched. Something very, very wise with a lot of wisdom. We are so grateful to you, sir. Thank you very much. Thank you. May I now request Professor Gurpal Singh Ji. When I was talking to him, it was indeed such a great pleasure when he gave me the insight, and my soul was touched while talking with him when he told me that there is an encyclopedia of Hinduism. He is the associate editor to the 19 volumes which were written at Rishikesh under Mahant Shukracharya ji, and he stayed in a small kutia that's called Shankracharya Kutir, and there we did the entire Manthan, and they wrote 19 volumes. So you inspired me so much. Of course, we are going to have a wisdom from you this evening, Gurpal ji. But besides that, we are also looking forward to, and I'm personally looking forward to, I wish to do lots of reading related to that, because Nalanda, I'm going through trying to understand what we deliberated yesterday. And today when we are on the journey, Indian genius, our tradition of wisdom, and from world over. And you'll be so happy to know if I tell in a very polite way that His Excellency, the High Commissioner from Laos, he's also with us on this particular program today. He wants to understand, next to Myanmar and Cambodia, there is a place called Laos,
A lot of people have joined from there and they want to know, they follow Buddhism. So, ladies and gentlemen, with these words, may I extend a very hearty welcome to our distinguished guest, Gurpal ji. Kindly unmute your mic and please come, Gurpal ji. हाँ जी, Yes, sir. Gurpal ji. क्या मेरी आवाज सुन रही है सर? Yes, sir. Yes, sir. We can see you, we can feel you, and we want to have your wisdom now. ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रमोद जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, गुलशन जी का, वरिंदर जी का और मेरे दोस्त करमजीत का, जिन्होंने मेरे को चांस दिया कि इतनी जो अहम बातचीत हो रही है, इतना इम्पोर्टेंट इश्यूज पर हम बातचीत कर रहे हैं और उसको उस बातचीत भी हम भारतीय ज्ञान परंपरा के हवाले से कर रहे हैं, उसमें मेरे को भी मेरे विचार पेश करने का मौका दिया और इतनी ऑगस्ट ऑडियंस के सामने मेरे को अपने विचार पेश करने की एक बहुत ही अद्भुत, यानी कि मेरे को खुशी महसूस हो रही है आपसे, आपके सामने हमारी जो मेरी छोटी सी बुद्धि है, बहुत मेरा अल्प ज्ञान है, उसको आपके साथ साझा करते हुए सबसे पहले तो ये बात है कि दो बातें मैं आपसे साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि ज्ञान और बात है, यानी कि नॉलेज और बात है, और जानकारी यानी इंफॉर्मेशन और बात है। जो हमारी परंपरा है वो बेसिकली ज्ञान की परंपरा है, जिसका जो जानकारी या इंफॉर्मेशन है वो उसका एक स्टेप है। आपको पहले उस स्टेप में जाना है, उसका पूरा अध्ययन करना है, एक एक बात से आपको परिचित होना चाहिए। और उसके साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भारतीय परंपरा में ही है, वो ये है कि जो आप शब्द बोल रहे हैं उसके आपको संकल्प का भी पता होना चाहिए। हमारी परंपरा में एक शब्द भिन्न भिन्न विचार पद्धतियों में बरता जाता, वो उसको प्रयोग किया जाता है, मगर उसके संकल्प बदलते जाते हैं। तो हमें इस दुनिया में भारतीय परंपरा को मानने वाले को ही ये तौफीक प्राप्त होती है कि वो शब्द के साथ संकल्प की भी वो चेतन होता है। तो एक तो ये बात है कि हमने ये देखना है कि एक शब्द किस परंपरा में कैसे प्रयोग किया जाता है और दूसरी परंपरा में कैसे प्रयोग किया है, साथ में उसकी संपूर्णता किसके साथ है, उसके संकल्प के साथ है। और सेकंड ये बात है जो हमें इंसाइक्लोपीडिया में सिखाएगी, खास तौर पे जो सत्य है, जो हमें सबसे पहले हमें मान लेना चाहिए, वो ये है कि भारत में जो भारतीय धर्म परंपरा है वो अपने आप में ज्ञान परंपरा भी है। जो भारतीय धर्म परंपरा वैसी रिलीजियस ट्रेडिशन ही है जैसी सेमेटिक में होती है। वहां पे जो टोटल जो फोकसिंग है वो थियोलॉजी पे है। एक ज्ञान धर्म परंपरा की थियोलॉजी दूसरे परंपरा की थियोलॉजी से वो डिफर कर जाती है, उससे वक्री हो जाती है, उससे भिन्न हो जाती है और नई परंपरा बन जाती है। हमारे ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारे बेसिकली क्या है कि हमारे थियोलॉजी नहीं है, हमारे सत्य है, एक सत्य है। ऋग्वेद का बहुत अच्छा, जो बहुत ही कमाल का श्लोक है समुची मानवीय जाति के लिए है, एक असत बेपरा बहुत अविदंती। सत्य एक है जिसकी व्याख्या करने के जो डिफरेंट सारे मोड्स ऑफ इंटरप्रिटेशंस हैं। तो हमारे क्या है कि हमारे जो धर्म परंपरा है वो बेसिकली ज्ञान परंपरा है। सिमिलरली हमारे जो धर्म है, जैसे हिंदुइज्म बोलिए या भारतीय धर्म बोलेंगे, तो वो धर्म परंपरा के साथ साथ वो सिविलाइजेशन, मोड ऑफ सिविलाइजेशन है, हमारी वो सभ्यता के मोड है। इसलिए जब हमने ज्ञान की बात करनी है, जानकारी की बात और बात है। जानकारी बेसिकली कैरियर कंसर्न्ड फिनोमेनन, ज्ञान वो जीव कंसर्न्ड, आत्मा कंसर्न्ड फिनोमेनन, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो जो भारतीय धर्म परंपरा है वो धर्म परंपरा अपने आप में क्या है, वो एक ज्ञान परंपरा है। इसलिए जब हम हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुइज्म की बात करते हैं, जब भारतीयता की बात करते हैं, तो हम किस बात की करते हैं कि भारतीय सिविलाइजेशन की बात करते हैं। इससे भी एक और इम्पोर्टेंट आपसे बात करना चाहता हूं मैं, उसके बाद हम जो आज का जिस सब्जेक्ट पे उसके बाद आते हैं हम, तो जो हमारे वो नेशन स्टेट नहीं है, जैसे अब वेस्टर्न तो सर अगर आप अपना वीडियो ऑफ कर लेंगे तो वी विल बी एबल टू हियर योर ऑडियो। आपका ऑडियो नहीं आ रहा है सर, आप वीडियो ऑफ कर लीजिए तो आपका ऑडियो आ जाएगा। ओके, आप वीडियो ऑफ कर लीजिए, आपका ऑडियो आ जाएगा सर। हाँ जी।
तो जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे नेशन स्टेट नहीं है, हमारे सिविलाइजेशन स्टेट है। हमारे एक सिविलाइजेशन का एक ही स्टेट है, उसमें राज्य कितने भी हो सकते हैं। तो अगर जब आप आर्यव्रत कहते हैं तो आर्यव्रत मीन्स साउथ एशिया, टोटल साउथ एशिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो हमारी जो ज्ञान की बात है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के रेफरेंस से होती है। उसमें कोई भी धर्म कहीं से आ गया, जैसे इस्लाम आ गया, क्रिश्चियनिटी आ गई, सिमिलर जुडाइज्म आ गया, तो ये आने की प्रॉब्लम नहीं है। मगर हमारी सिविलाइजेशन क्या है, हमारी सिविलाइजेशन एक है। तो हम जानकारी की बात और करेंगे और हमारी जो सभ्यता की बात करनी है वो ही हमारे ज्ञान की बात है। तो जैसे हम टाइम को ध्यान से रखते हुए, क्योंकि हमारे पास बच्चे भी है, जो स्टूडेंट हमारे पास है, और थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट भी हो सकती है। तो बेसिकली एक बात तो ये है कि हमारे जो भारतीय परंपरा में सबको एक साथ लेके चलना है, एक दूसरे से मिलके चलना, ऑल इंक्लूसिव। जो सेमेटिक है वो कहता है कि वो टाइम एंड स्पेस में है, हमारी बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है, हमारी काल अतीत है, वो काल प्रासंगिक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेमेटिक ट्रेडिशन में 5 पैगंबर है। पहले कौन कौन? एडम है। एडम का एक अपना काल है, उसके बाद खुदा का, अल्लाह का, जो गॉड का, जो लॉर्ड का मैसेज किसको है, वो एडम को है। और आदम के बाद फिर आदम को एक टाइम क्या है कि आदम का की प्रेजेंस अप्रासंगिक होगी, तब अब्राहिम आ गया। तो फिर उस वक्त अल्लाह का, गॉड का, लॉर्ड का मैसेज किसके लिए होगा? उसको इब्राहिम के लिए। एट उस टाइम आदम अप्रासंगिक है, इब्राहिम प्रासंगिक है। उसके बाद मोसेस आ गया। तो फिर ये सभी हुक्म किसके लिए हो गए, ऑर्डर्स किसके लिए हो गए? वो हो गए सभी के सभी मोसेस के लिए। उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हो गया? आदम भी अप्रासंगिक, देन फिर इब्राहिम भी अप्रासंगिक, तो फिर मोसेस प्रासंगिक है। उसके बाद क्राइस्ट आ गए, तो फिर क्राइस्ट प्रासंगिक, बाकी अप्रासंगिक। उसके बाद मोहम्मद साहब आ गए, तो मोहम्मद साहब एंड कुरान प्रासंगिक, बाकी अप्रासंगिक। हमारी परंपरा में ये नहीं है। हमारी परंपरा में क्या है? एक का सत्य वेपरा बहुत अवदंती, एक का सत्य है। उसको पहले शैविज्म ने उसका व्याख्यान किया, शैविज्म के जरिए रिप्रेजेंट हुए। उसके बाद वैष्णव ट्रेडिशन के रिप्रेजेंट हुए, फिर वेद के जरिए रिप्रेजेंट हुए, देन उपनिषद, देन वैदिक परंपरा, देन जैन ट्रेडिशन, देन बौद्ध ट्रेडिशन, देन भक्ति ट्रेडिशन। मगर सभी में क्या है? एक सत्य। तो हमें ये देखने की जरूरत है कि हमारे एक सत्य है जिसकी डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन होती है अक्रॉस द टाइम, काल अतीत होना। इसलिए हमारा जो निर्वाण काल अतीत है। हमें कोई स्वर्ग नरक ऐसा कुछ नहीं मिलना, हमें क्या होना है? मोक्ष की प्राप्ति है, अपनी संपूर्णता के साथ मिलना, ये ही हमारे लिए मोक्ष की प्राप्ति है। तो जो हमारा ज्ञान है, हमारा ज्ञान क्या होगा? हमारा ज्ञान उस मोक्ष की पॉइंट ऑफ व्यू से, मीन्स यूनिफिकेशन विद द कॉस्मोस। ये नहीं कि हम कहीं और हैं और कॉस्मोस कहीं और है। जो भारतीय परंपरा में जानकारी कुछ भी हो जाए, मगर ज्ञान है कि आपकी उस कॉस्मोस के साथ यूनिफिकेशन है। गुरबाणी में बहुत अच्छा है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो ब्रह्मांड है सोई पिंड। इसलिए सबसे जरूरी बात है कि हमारी जो ज्ञान जो हमारी एजुकेशन का सिस्टम है वो सिस्टम होना चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि हम एटलीस्ट हमारी परसेप्शन भी होना चाहिए कि हमारे को भेदभाव नहीं है। हम इंडिया में कभी भी राइट्स नहीं हुए, पहली बार राइट्स अंग्रेजों के आने के बाद हुए थे, जबकि कितनी धर्म परंपरा रही है जहां पर। मगर क्यों नहीं थी? क्योंकि हमारी जो परंपरा है वो हमारी वो संपूर्ण सृष्टि के साथ हम एक मिलकर जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या कहता है, जो सिंपल जाके मैं 4 लेवल आपके साथ शेयर कर लेता हूँ जो भारतीय ज्ञान परंपरा के बेसिक कंस्टिट्यूएंट हो सकते हैं। वो 4, हमारा ज्ञान उन चारों में है। अगर आज हमने फिजिक्स की स्टडी, फिजिक्स में पढ़ना है, या कंप्यूटर साइंस में पढ़ना है, या लिटरेचर में पढ़ना है, या फिलोसफी में पढ़ना है, या टेक्नोलॉजी में पढ़ना है, तो हमारे लिए 4 कंस्टिट्यूएंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर पहला अगर शुरू से करें तो वो है जीव। जीव जिसको भागवत गीता में हमारी परंपरा में पहले क्या किया जाता? आत्मा बोला गया। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट आत्मा। आत्मा क्यों है? क्योंकि हमारी आत्मा काल अतीत है। भागवत गीता में सीधा क्या है कि इसको ना शस्त्र काट सकता है, ना इसको अग्नि जला सकती है, ना पानी, जो भी आप जानते हैं। मगर सबसे बेसिक है जीव। सारा जीव हमारे लिए, इस सृष्टि के जितने भी जीव हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए गुरबाणी में कहेगा जियो पिंड सब तेरी रास। जीव भी सभी तेरी रास में, मीन्स सत्य की रास में, और पिंड भी तुम्हारी रास में है। तो इसलिए सबसे पहले हमें जीव के रेफरेंस देखना चाहिए। साइंसेस में जो है कि जो प्लांट्स हैं, जो उनमें भी अपने आप में लाइफ है। जहां भी लाइफ है, मखलूक जिसको फारसी में बोला जाता है, जहां भी लाइफ है वहां पे जीव है, वो हमारा पार्ट है। उसके बाद जो सेकंड आता है वो आता है पिंड। पिंड मीन्स बॉडी स्पेस, फिजिकल अपीयरेंस। हमारा जो सत्ता है, हमारी जो सृष्टि का सत्ता है, एक उसका जीव फॉर्म है, एक उसका पिंड फॉर्म है। जो हमारी आज की प्लेनेट है
वो उसका पिंड फॉर्म है। सिमिलरली जो आज हम मनुष्य स्वरूप में है, जब मनुष्य शरीर में है, ये हमारा पिंड है। हो सकता है अगले जन्म में हम इस शरीर में ना हो, हम सांप भी हो सकते हैं, हम चींटी भी हो सकते हैं, हम हाथी भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, मगर ये क्या है? पिंड है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जीव के साथ किसका रिश्ता है? पिंड का। क्यों? आज हम इंसान के पिंड में हैं, जहाँ मनुष्य के पिंड में है, तो हमारा फर्ज बनता है कि चींटियों को भी हम उनको भी खाना दें, हमारा जो पानी के जीव है उनको भी खाना दे। आपने देखा कि अगर सुबह सैर करते हो तो बहुत सारे बहुत अच्छे लोग, जो सियाने लोग होते हैं, वो चिड़िया को दाने डाल रहे होते हैं, पक्षियों को दाने डाल रहे होते हैं। जो ये नहीं कि जो वहम भरम की बात नहीं, वो क्या है? वो आपका टू बी अ ह्यूमन, इस पिंड का आप धर्म अदा कर रहे हैं, क्योंकि आपको ह्यूमन का पिंड मिला है, जी मनुष्य का पिंड मिला है, तो आपने हर एक का ध्यान रखना है। इसलिए जो सिमिलरली जिस प्लेनेट का ध्यान रखना है, इस प्लेनेट में जो 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 प्राणी, नंबर 2 पानी, नंबर 3 पर्यावरण। पानी धरती के नीचे है, उसके ऊपर धरती में प्राणी घूमता है, और प्राणी किसमें घूमता है? पर्यावरण में। जो तीनों ही हमारे पिंड की बातें, पिंड के एस्पेक्ट हैं। अगर हम आज के जो हमारे टोटल साइंसेस हैं, जो हमारे जितना भी सिस्टम ऑफ नॉलेज है, उनको तीनों में फोकस करें कि हम तीनों के कल्याण की बात करनी है, हमने सिर्फ ह्यूमन के कल्याण की बात नहीं करनी। अगर हम ह्यूमन के कल्याण के लिए हमने बहुत कुछ बना दिया, एसी बना दिए, कारें बना दी, जीप बना दी, इसने हमें टोटल कॉस्मोलॉजी से डिटैच कर दिया। तो हमारे लिए क्या है कि हम तीनों, जैसे मैं बोल रहा हूँ, प्राणी, पानी और पर्यावरण, अगर हम तीनों को फोकस करें, तीनों हमारा पिंड रूप है। और पिंड के ऊपर क्या है? वो है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के भी 2 पक्ष हो सकते हैं, नंबर 1 ब्रह्मांड, नंबर 2 ब्रह्म। जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड मीन्स कॉस्मोलॉजी। जो हमारा प्लेनेट है, उस प्लेनेट का सिर्फ जो पिंड फॉर्म है, पिंड रूप है, वो ही कंप्लीट रूप नहीं है। वो सारा किसके ऑर्डर में है, किसके प्रसंग में बजा हुआ है? वो इस ब्रह्मांड के प्रसंग में बजा हुआ है। हमारे लिए ब्रह्मांड इंपॉर्टेंट है, 2 रूपों के लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर वन की जो हमारा पिंड है, पिंड का एक्सटेंडेड फॉर्म क्या है? ब्रह्मांड। और दूसरा जो ब्रह्म का साकार रूप है, वो कौन है? वो पिंड, ब्रह्मांड है। तो हम जब तक हम ह्यूमन बीइंग को ब्रह्मांड के कॉन्टेक्स्ट में नहीं लेते, जो ब्रह्मांडे सो ही पिंडे, सिमिलरली जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, हमारा ब्रह्मांड का यह मंच है। इसलिए जब तक हमारा ज्ञान किसके जिस भी डिसिप्लिन में आप जा रहे हैं, तो आप अपने आप को, ह्यूमन बीइंग को जीव से पिंड से लेकर आकर आगे किसका लेके जाना है? ब्रह्मांड तक लेके जाना है। जब तक हम ब्रह्मांड सेंट्रिक नहीं होकर भारतीय परंपरा और जो वेस्टर्न परंपरा है, जिसको सेमेंटिक हम डिफरेंशिएट करते हैं, उसमें यह है कि भारतीय ट्रेडिशन में क्या है कि पिंड और ब्रह्मांड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के लिए कंपैटिबल है, एक दूसरे के अनुरूपी है। जहां पे हम ब्रह्मांड के लिए अपने आप को सरेंडर करते हैं। जो सेमेंटिक है और उसके साथ जो वेस्टर्न ट्रेडिशन है, उसमें क्या है? दैट्स अ प्रोसेस ऑफ कंकरिंग। वहां जो पिंड है, किसको? वो ब्रह्मांड को कंकर करता है। अगर आदम को आसमान से रब ने फेंक दिया, तो उसको क्या है कि उसने द्वारा कंकर करके paradise regained. If Adam lost the paradise, then he is supposed to regain it. तो रीगेनिंग क्या है? कंकरिंग। भारतीय परंपरा में कंकरिंग नहीं, भारतीय परंपरा में क्या है? भाव समावेश है। हम किसी दूसरों के साथ रह के हम एक संपूर्ण जिंदगी बताएंगे। हम चाइना को ये बोल रहे हैं कि तुम भी रहो और हम भी रहते हैं, ना आप हमको कंकर करने की कोशिश करो, ना हम आपको करते हैं। यही हम पाकिस्तान को बोलते हैं, यही हम दूसरे सारे संसार को बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि हम एक साथ रहते हैं। हमारे तो अगर आप शिव जी की देखोगे, चाहे उसकी मूर्ति देखो, उसमें सांप भी है, गाय भी है, क्या क्या नहीं है। उस जो टोटल कॉस्मोलॉजिकल जो उसका भोग क्या है, प्रसाद क्या है, ये सारा कॉस्मोलॉजिकल है। इसलिए जो पिंड से आगे क्या है? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के आगे ब्रह्मांड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ब्रह्मांड की ब्रह्म के साथ ऑर्डर्ड है, ब्रह्म के साथ कॉम्प्लीमेंटैरिटी है। ब्रह्म से वो छूता नहीं है, ब्रह्म से दूर नहीं है। अगर आप ब्रह्म के लिए जाना चाहते हो, तो कहाँ आपके लिए किसके लिए कहाँ अहमियत देनी पड़ेगी? ब्रह्मांड को। जब तक जीव पिंड में आता है, पिंड को फिर ब्रह्मांड में आता है, तो ब्रह्मांड में क्या है? ब्रह्म। अगर आप बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में देखो, तो उसमें क्या था कि शब्द ब्रह्म। अगर वेद में पढ़ोगे तो वहां भी शब्द ब्रह्म और नाद ब्रह्म। तो एक है कि ब्रह्म मीन्स एक ब्रॉड फॉर्म,
ब्रह्म का मतलब तो वो सत्या, एक बड़ा सत्या के एक बड़े प्रसंग, जिसके प्रसंग का हम छोटा प्रसंग बनते हैं। तो इसलिए जो भारतीय ज्ञान परंपरा है वो सारी परंपरा, अगर आज की नॉलेज को जोड़ना है, आज की स्टडीज को जोड़ना है, तो ये नहीं कि जस्ट कि हम फोकस किस पे करें, जस्ट ह्यूमन, कि वी ह्यूमन के लिए, ह्यूमन सिविलाइजेशन की, हम तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए, इसके विकास के लिए, इसके लिए करते हैं। आप ये भी करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी बात है, मगर ये तब तक संपूर्ण नहीं है जब तक आप जीव से लेकर पिंड में नहीं आते, पिंड से लेकर ब्रह्मांड में नहीं आते, और ब्रह्मांड में लेकर ब्रह्म तक नहीं जाते। मगर ब्रह्म के आगे भी है, वो क्या है, वो सत्य, एक असत विपरा बहुधा भ्रंति। बेसिक क्या है, सत्य है। गुरु श्री ग्रंथ साहब में पढ़ोगे तो सब तो पहले कि एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूर्त जुनी सेवन। एक तो बात सत्य नाम है। उन सत्य नाम तो बाद जो ही पौड़ी, अगर वही पौड़ी आगे चलेंगे तो उसमें क्या है, आज सच, जुगात सच है, भी सच, नानक होसी भी सच। तो ये आज बहुत देखने वाली बात है कि उसमें पहले सत्य है, सत्य नाम, उससे सतगुर बनता है, सतगुर पूरा भेटे, तो फिर उसके बाद सच आएगा। सत्य और है और सच और है। बहुत हम ये सोच रहे थे कि सत्य और सच एक है, मगर सत्य और बात है और सच और बात है। इसी में जैसे कर्मजीत ने बोला है कि सच और सबको ऊपर सच उचार, ये नहीं है कि सत्य और सबको ऊपर सत्य उचार। इस तरह सतगुर पूरा भेटिया, सतगुर पूरा भेटिया है, सचगुर पूरा भेटा नहीं है। सच्चा नाव, नाव सच्चा है। तो ये है कि सबसे बड़ी बात है सत्य, सत्य सत्य, वो ट्रुथ, वो ऑर्डर है ट्रुथ। सत्य की ट्रांसलेशन हम ट्रुथ नहीं कर सकते ना, सत्य की, सत्य और सत्या को हम एक मान सकते हैं। सत्या से अगर आप वैदिक संस्कृत में देखेंगे तो सत्या एक धातु रूप है। सत्य मीन सत्य अपने आप में कंप्लीट वर्ड है। तो सत्य का मतलब है कि अगर आप वेद में जैसे है कि अगर आप सत्य को मनन कर लेते हो तो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ सत्य। गुरबाणी में है कि अगर आप उसका अध्ययन करते हो तो यू कैन एक्सपीरियंस द सत्य, उसमें मन करके यू पार्ट देन यू कैन एक्सपीरियंस। तो ये है कि जब तक आप सत्य मीन्स ये टोटल कॉस्मोस के ऑर्डर तक अपने ज्ञान को नहीं लेके जाते, तब तक आपका ज्ञान अधूरा है। अगर हम ये चाहते हैं कि आज के सोशल साइंसेस, आज के फिजिकल साइंसेस, आज की लाइफ साइंसेस एंड आज के दर्शन, ह्यूमैनिटी, लिटरेचर, ऑल दीज, अगर इनको लेके जाना है तो जेब को लेके जाने का एक भारतीय नजरिया है, भारतीय दृष्टिकोण है। वो दृष्टिकोण ये है कि हम जीव से शुरू करें और उसको सत्य तक लेके जाएं। मगर इसका ये मतलब है कि जो हमारे कॉन्सेप्ट है, ये हमारे कॉन्सेप्ट है, मीन्स हमारे संकल्प है, और साथ के साथ इसके लिए हमारे शब्द भी है। अगर हम सत्य को ट्रुथ में ट्रांसलेट करेंगे तो वो हमारा संकल्प नहीं रह जाएगा, देन दैट वुड बी द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक ट्रेडिशन। तो ये हमारे लिए बहुत ध्यान की जरूरत है कि अगर हमारे ज्ञान को लेके जाए तो हमारे लिए दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है। नंबर वन कि हम जीव को जीव से शुरू करेंगे और उसको कहां तक लेके जाएंगे, सत्य तक। वी विल नॉट फोकस जस्ट ऑन सोसाइटी, ऑन ह्यूमन, on nation and other things. These are also part of our processes, but we cannot focus only on these items or these units. हमें लिए क्या है कि हमें जीव से शुरू होगा। जीव का कोई धर्म नहीं, जीव की कोई रेस नहीं, जीव की कोई नेशन नहीं, और इसके लिए जीव समूचा कायनात है। अगर हमारे लिए जो नॉर्थ पोल में रहने वाले जीव जंतु है वो भी हमारा ही पार्ट है, और इसके लिए जीव के बाद पिंड, हम हर पिंड को सत्कार करना है। हमारे लिए जो ब्लैक है, जो सिनो इंडियन है, जो फॉर एग्जांपल ये व्हाइट है, ये हमारे लिए तो जो पिंड है, उस पिंड के साथ हमारे लिए सांप भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ह्यूमन है। हमारे लिए चूहा भी उतना इंपॉर्टेंट है, कीट पतंगा भी, कई जोन पर कीट पतंगा गुरबाणी में कितने जोन, हम कीट पतंगे भी घूमते रहे, तो हमारे लिए ये भी होगा। और इसके साथ लिए जो हमारा एक मेथड है, जो हमें ब्रीफली मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में करने के लिए, जो पहले उस पर रिपीट नहीं करता, जो हमने 4 महीने बोले थे कि क्या जीव, पिंड, ब्रह्मांड और सत्य, इसको पाने के लिए हमारे पास मेथड भी है, वो भी जो हमारे ट्रेडिशन में मिलता है। उसमें क्या है, कर्म, फिर भक्ति और फिर ज्ञान। हमारा मेथड क्या है कि हम कर्म करेंगे, फिर भक्ति करेंगे और फिर ज्ञान करेंगे। हमारे ज्ञान के बगैर कर्म का कोई मूल्य नहीं है, और कर्म के बगैर भक्ति का कोई मूल्य नहीं। अगर हम पहले कर्म करेंगे, फिर भक्ति करेंगे और फिर ज्ञान की तरफ चलेंगे, तो ये अगर हमारा ये मेथड अडॉप्ट करेंगे, ये मेथड हमारा इंडियन मेथड है। आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप फॉर एग्जांपल वेद में देखोगे तो भी इसी में ही है, जो उनमें तीनों की बात हुई है, ज्ञान और कर्म और भक्ति की। अगर आप फॉर एग्जांपल भागवत गीता में देखो, बहुत एक्सक्लूसिवली
उसको उनको तो सेंट्रलाइज करके कर्म पे भक्ति और ज्ञान की बात की है। अगर ज्ञान नहीं तो कर्म और भक्ति कोई बहुत उसका मतलब उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं रह जाता, उसकी अहमियत नहीं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपके साथ में शेयर करता हूँ कि ये साल जो गुरु तेग बहादुर जी का 400 साल अब हो रहा है, गुरु तेग बहादुर जी इसकी ज्योंदी जागदी, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, जीवंत मूर्त है, जो जिन्होंने क्या किया, कर्म, भक्ति और ज्ञान। वो एक ऐसे हैं, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे गुरु हैं जो हमारे लिए ऐसे जीव की उन्होंने एग्जाम्पल दी है गुरु रूप में आके, जिसके पास क्या है, कर्म, फिर भक्ति और ज्ञान। कर्म क्या है कि उन्होंने जाके वहां पे शीश दिया। वो तेग बहादुर थे जिन्होंने 14 साल की उम्र में युद्ध जीता था। वो ललकार भी सकते थे औरंगजेब को, मगर उस वक्त ये कर्म नहीं था। कर्म क्या था, शहादत देनी। आप जाके वो ये नहीं कि उनको आगे पकड़ा, उन्होंने आके शहादत। कर्म क्या था, शहादत का कर्म था। हालांकि वो बानी भी थी, मगर वो शहादत के साथ भक्ति भी थी। भक्ति किसकी थी, हिंद की। हम गुरु तेग बहादुर कहते हैं हिंद की चादर, वो हिंद की भक्ति। वो हिंदू लोगों की पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिप्रेस किए जा रहे थे, जो दबाए जा रहे थे, दबाए जाने के माध्यम से वो ह्यूमन की भक्ति भी थी और उसके साथ ये ज्ञान भी था। इसलिए इसी मेथड को हम अडॉप्ट कर सकते हैं जो भारत की परंपरा का पूरा है कि नंबर 1 कर्म, फिर भक्ति और फिर ज्ञान, और उसको हम इस पैटर्न में लेके जाना है। हमें जे आपके साथ में जे बिल्कुल एक्सक्लूसिवली शेयर करूंगा कि आप किसी भी जियो स्कॉलर को देख ली, अगर आज डिकंस्ट्रक्शन में दैरिता को देख ली, मार्क्स को देख ली, फ्राइड को देख ली, नीत्शे को देख ली और दूसरे को देखो, वो जुडाइस्टिक ट्रेडिशन को नहीं छोड़ते। उनका जो एपिस्टीम बोलते हैं, उसके लिए टर्म है एपिस्टीम, ज्ञान ग्राम जिसको बोलते होते हैं। उनके ज्ञान का धुरा कहाँ चलता है, वो जुडाइज्म होगा। अगर कोई स्कॉलर ईसाई होगा तो उसका ज्ञान का धुरा कहाँ से चलेगा, ईसाइयत से। और जो इस्लाम का होगा तो उसका धुरा कहाँ से चलेगा, इस्लाम से। तो हमारे लिए क्या है कि हमारे लिए जो इंडियन ट्रेडिशन है, इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन है, इंडियन दर्शन है, हमारे ज्ञान के धुरे कहाँ से शुरू, ज्ञान का धुरा कहाँ होना चाहिए, भारतीय परंपरा में। हम भारतीय परंपरा से सभी को इंटरप्रेट करना है। भारतीय परंपरा से हमने जुडाइज्म को भी इंटरप्रेट करना है, इस्लाम को भी करना है, क्रिश्चियनिटी भी करना है, और बाकी जो दुनिया की परंपरा है उन सभी को हमने करना है। इसलिए जब तक हम हमारे ज्ञान ग्राम से नहीं जुड़ते, अपने हमारे भारतीय एपिस्टीम से नहीं जुड़ते, तब तक हमारे ज्ञान का और विद्या का हम किसी भी तरह भारतीयता उसमें नहीं ले आ सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। और भी बहुत सारी बातें करने से, मगर मैं केयरफुल हूँ कि बहुत टाइम की एक पर्टिकुलर सीन है मेरे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, और खास तौर पे आपके लिए कि आपने मेरे को चांस दिया। सभी धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपके विचार बहुत ही सराहनीय हैं। ज्ञान, जानकारी, शब्द, संकल्प, भारतीय परंपरा, सत्य एक है, और सबसे बड़ी चीज unification with cosmos. That is something, the climax, one has to understand. We have to get a part of the cosmos once again. आपके बहुत ही सुंदर विचार। समय की आज कमी जिसकी वजह से हम और आगे नहीं चल पाए, लेकिन हम जरूर इस पूरे कार्यक्रम को आपके साथ, क्योंकि शुरू में ही प्रमोद जी ने कहा था कि विषय बहुत बड़ा है और इसको इतने कम समय में पूरा विस्तार से डिटेल में सबको बताना बहुत मुश्किल है। तो मैंने वरिंदर गर्ग जी से भी रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया कि हम इसके 2-3 पार्ट, 2-3 कार्यक्रम और आगे बाद में लेके चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत, प्रोफेसर गुरपाल सिंह जी। और अब मैं निवेदन करूंगा श्री प्रमोद कुमार जी, जो प्रांत प्रचारक हैं, वो अपने विचार सम्मुख रखें और हमें संबोधित करें। श्री प्रमोद कुमार जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। सत्कारयोग डॉक्टर गुलशन जी, डॉक्टर करमजीत सिंह जी, डॉक्टर गुरपाल सिंह जी एवं डॉक्टर वरिंदर गर्ग जी। आज का ये विषय, जैसे मैंने पहले भी डॉक्टर गुलशन से निवेदन किया था कि बहुत वास्ट विषय है, और अभी पहले के 2 वक्ताओं ने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं वो बहुत अच्छा लगा। मुख्य रूप से अध्यात्मवाद और दर्शन परंपरा, इन 2 विषयों पर मुख्य रूप से मेरे पूर्व वक्ताओं ने विषय को लिया है। भारत की भूमि जो है ये अध्यात्म
दर्शन, संस्कृति, राजनीति, धर्म, विज्ञान और विभिन्न क्षेत्रों में विकसित मानव बिंदुओं के श्रेष्ठतम अभिव्यक्ति की जननी है। यह भूमि गौरवशाली परंपराओं की आधारशिला है। यह विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है और कहीं भी ऐसी पारंपरिक विविधताओं मिलती नहीं है। सदियों से फलते फूलते हुए और आगे बढ़ते आ रही है। भारतीय संस्कृति का प्राण है धर्म, और विज्ञान और दर्शन, इन दोनों में ही भारत ने समानांतर रूप से विकास किया है। तो इस विकास का जो मुख्य कारण, जैसे मैंने पहले बताया है कि विषय इतना लंबा है कि 10 मिनट में सारी बातें नहीं कही जा सकती। तो मेन मुद्दे पर मैं आने का लेकर जाने का आपको कष्ट करूंगा अभी, कि जैसे किसी ने पूछा कि भाई साहब रामायण के बारे में आप क्या जानते हैं, मेरे को 5 मिनट में बताइए। तो 5 मिनट में रामायण के बारे में जो बताने वाले व्यक्ति ने एक श्लोक का गठन जो किया है, वो श्लोक उसने पढ़ के सुना दिया। आदो राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम द्वितीय रामायणम। तो एक श्लोक में ही सारी उसने रामायण सुना दी। तो भारतीय संस्कृति के बारे में, जहां हम कह लें कि भारतीय प्रतिभा या परंपरागत बुद्धिमत्ता के बारे में अगर एक श्लोक में या एक ही सेंटेंस में बताना हो, तो मुझे लगता है कि ये जो पूर्व पश्चिम फिल्म आपने सभी ने देखी होगी, तो उसमें मनोज कुमार ने एक बड़ा सुंदर गीत गाया है। उसने कहा है, जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा दुनिया को सबसे पहले है सिखलाई, दे तारा दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती आकाश की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, सभ्यता यहाँ पहले आई, पहले जन्मी थी यहाँ पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा। तो एक ही इस गीत के पैरे में ही जो सारी बातें भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति और हमारी परंपरागत बुद्धिमत्ता के बारे में जो कही जा सकती है, तो एक ही गीत में कही जा सकती है। लेकिन ये संस्कृति कोई रातों रात विकसित नहीं हो गई, इसको विकसित करने के लिए सदियां लगी हैं। कल हम नालंदा विश्वविद्यालय के युग के बारे में बात कर रहे थे। नालंदा के साथ साथ ही एक और विश्वविद्यालय पंजाब में हुआ था, तक्षशिला जिसको कहा जाता था, चाणक्य जिसके एक अध्यापक रहे हैं। तो उसमें आज से 2700 वर्ष पहले बताया जाता है कि वहां पर 68 प्रकार के विषय जो है विद्यार्थियों को पढ़ाए जाते थे। 68 टाइप ऑफ इश्यूज जो लोगों को स्टडी करवाई जाती थी, और जिसमें विश्व में से अनेकों
देशों के लोग वहां पर विद्यार्थी के रूप में पढ़ने के लिए आते थे। बेबीलोनिया, ग्रीस, सीरिया, अरब, चाइना इत्यादि अनेकों देशों से लोग जो है पढ़ने के लिए यहाँ पर आते थे। तो वहां पर वेद शास्त्र, भाषाएं, व्याकरण, दर्शन शास्त्र, औषधि शास्त्र, सर्जरी, आर्करी, राजनीति, युद्ध शास्त्र, खगोल शास्त्र, लेखांकन शास्त्र, व्यापार शास्त्र, ज्योतिष विद्या, प्रलेखन विभाग, रहस्यमयी संगीत विभाग, नाट्य शास्त्रम, कानून शास्त्रम इत्यादि अनेकों विषय पढ़ाए जाते हैं। जैसे मैंने बताया 68 इतने विषय में अपनी डायरी पर भी लिख नहीं पाया जितने विषय वहां पर पढ़ाए जाते थे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि भारतीय प्रतिभा का तो कोई जो था पाया ही नहीं जा सकता, ऐसा कई बार लगता है। और ऐसी बातों के बारे में 10-12 मिनट में बताना थोड़ा कठिन रहता है। तो लेकिन दूसरा विषय जो इसके साथ जुड़ा हुआ है कि इस परंपरागत बुद्धिमत्ता का विकास करते हुए इसको आगे बढ़ाने की दिशा में हम कैसे बढ़ें, तो उसके लिए हमको अपने जो प्राचीन परंपराएं हैं जीवन जीने की, उसकी तरफ मुड़ना पड़ेगा। उदाहरण के लिए हमारा फैमिली सिस्टम, परिवार सिस्टम जो है, उसमें नए बच्चे को जन्म देना है तो हमारा बच्चा कैसा हो, बच्चे के संस्कार कैसे हो, तो उससे हमने करवाना क्या है, उसकी दिशा क्या होनी चाहिए। तो इस विषय पर पहले लोग सोचते विचारते थे और फिर वैसा अपना जीवन बनाते थे और उसके बाद बच्चा जो है माता के गर्भ में आता था। अर्थात जो बच्चे के अंदर 16 संस्कारों की बात हमारे वेदों में कही गई है, उसको लोग फॉलो करते थे। और बच्चे के जन्म से पहले ही 3 संस्कार हो चुके होते थे। बच्चे के जन्म गर्भाधारण तक ही 3 संस्कार जो हो चुके होते थे। तो ऐसे संस्कारी बीज के साथ जो बच्चा पैदा होगा, स्वाभाविक तौर पर उसमें गुण ग्रहण करने की दिशा में, आगे बढ़ने की दिशा में वो सारा आगे सिस्टम जो चलता था। मां जो है वे बच्चे की पहली गुरु और घर परिवार जो है ये बच्चे का पहला विद्यालय हुआ करता था। तो मां के पेट में से ही अनेकों प्रकार की बातें बच्चा सीख करके आता था। और ये कोई कपोल कल्पित बातें नहीं है। हम महाभारत की कथा में अभिमन्यु का जो रोल है, व्यूह रचना को तोड़ करके सभी वहां के योद्धाओं को धराशायी करके निकलने तक वो पहुंचा, लेकिन निकलने की कला जो है उसकी माता सुन नहीं पाई। जब अभिमन्यु पेट में था, माता सो गई थी, तो उसको वो कला ध्यान में नहीं आई और वो अंदर ही मारा गया। लेकिन मेरा कहने का भाव ये है कि अगर हम इस परंपरागत बुद्धिमत्ता को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमको इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूं कि भारत हमारा बहुत ही भाग्यशाली देश है। दुनिया की इस दिशा को देख करके हमारे संतों ऋषियों मुनीषियों ने पहले से उस काम को फिर से शुरू कर दिया है। विद्या भारती की तरफ से एक गुजरात में ऐसा ही स्कूल चल रहा है जिसमें माता पिता को संस्कारित किया जाता है जिन्होंने अभी बच्चे को जन्म देना है। उनसे पूछा जाता है कि आप किस प्रकार का बच्चा चाहते हैं, तो उस प्रकार के वातावरण में माता पिता को रखा जाता है और उसके बाद जो है गर्भाधान होता है और फिर उसी वातावरण में उस बच्चे की परवरिश होती है और वैसा ही बच्चा बनकर के आता है जैसी माता पिता की इच्छा होती है।
आज भी हम जानते ही हैं, हमारे गांव गांव में सभी किसान जानते हैं कि अधिक दूध देने वाली गाय अगर हमको आवश्यक है, चाहिए, तो उसको किस प्रकार के नंदी से नया दूध करवाना है, ये पहले लोग जानते थे और वैसा करते थे। और हर बार जो है गाय का दूध बढ़ता चला जाता था। और हम जानते हैं कि 32-32, 35-35 लीटर जो है दूध देने वाली साहीवाल नस्ल की गायें उस समय हुआ करती, आज भी उपलब्ध हैं। साहीवाल नस्ल की गायें 35-35 केजी दूध जो है डेली देने वाली आज भी हैं। तो उनको भी ऐसे ही संस्कारित किया गया है। तो इस संस्कार की परंपरा से हम इस विजडम को, इस भारतीय प्रतिभा को संसार तक पहुंचाने में समर्थ हो सकते हैं। तो आज की जो अपनी ये जो गोष्ठी जो चल रही है, मुझे लगता है कि इस विषय को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे कि 16 संस्कारों के बारे में हम भी जो है जाने और उनको अपने पारिवारिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। माँ प्रथम गुरु और परिवार प्रथम पाठशाला, और उस पाठशाला का वातावरण इस ढंग का रहना चाहिए परिवार का कि बच्चे को हर रोज कोई ना कोई नई बात सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो फिर हम संसार को एक अच्छा समाज देकर के जा सकते हैं। और अगर सारा समाज ऐसा संस्कारी बन जाएगा तो भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ सकेगा। इस विषय पर मैंने इतना ही निवेदन करना था। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी। आपने माहौल बहुत ही खुशनुमा और एक ऐसे विजडम को आप लेके चले और आपने पूर्व पश्चिम की बातचीत की। 1970 में मनोज कुमार जी की ये फिल्म आई थी और इस फिल्म और उपकार फिल्म दोनों के माध्यम से मैंने फौज ज्वाइन की थी। और कल्याणी आनंद जी का बहुत ही अच्छा मधुर संगीत था और जो गाने का स्थाई जो मोस्ट मुश्किल पार्ट था वो आपने शुरू में कवर किया। और महेंद्र कपूर जी मेरे फेवरेट सिंगर हैं और मैं हमेशा पेट्रियोटिक सॉन्ग उन्हीं के सुनता हूँ। जहां पर आपने छोड़ा वहीं से मैं 4 लाइनें लेता हूँ, वहीं से। है प्रीत जहां की रीत सदा, अच्छा जी, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ये आप ही के स्थाई के आगे के 4 लाइनें थी। मैंने कहा मैं उसको लेके चलूं। कल्याण जी आनंद जी ने बहुत ही मधुर म्यूजिक दिया था, मनोज कुमार जी की और प्राण जी की उसके अंदर परफॉर्मेंस, और बाकी प्राण प्रेमनाथ जी और ये सब लोगों की बहुत ही खूबसूरत पूरब और पश्चिम का। वो बाकी गाने मैं अभी नहीं आज गा रहा, पर जो जीरो की आपने बातचीत की दैट वाज वंडरफुल। और 16 संस्कारों के बारे में हम जाने और माता का और माँ का और वो सब चीजों का, संस्कृति का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना प्रेरित करते हैं और अब मुझे आज ये भी पता लग गया कि आप महेंद्र कपूर को बहुत समझते हैं और प्यार करते हैं। महेंद्र कपूर जी की मैंने पूरी डायरी बनाई हुई है और 300 पैट्रियोटिक सॉन्ग मेरे पास अलग से हैं जिनको मैं गुनगुनाता रहता हूं। और म्यूजिक थेरेपी हमारे एजुकेशन सिस्टम में आनी चाहिए। मैं अपने किचन में भी जब खाना बनता है तो उनको बोलता हूं म्यूजिक चलाओ तो देखो फिर खाना कैसा बनेगा। बाकी चीजें तो सात्विक रहेंगी रहेंगी, लेकिन म्यूजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर संस्कृति एंड आवर सिस्टम। थैंक यू वेरी मच सर। मे आई नाउ हम्बली रिक्वेस्ट जो इस पूरे प्लेटफॉर्म के सूत्रधार हैं, इस प्रोग्राम को बनाने वाले हैं, इस प्रोग्राम को पैकेज करने वाले हैं, इस प्रोग्राम को दिशा देने वाले हैं, डॉक्टर वरिंदर गर्ग जी जो मेरे बहुत ही पूजनीय हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस प्रोग्राम को आप कंक्लूड करें और कंक्लूडिंग व्यूज और रिमार्क्स और सबको धन्यवाद देते हुए हम इस प्रोग्राम को समाप्त करेंगे आपकी वाणी के बाद। डॉक्टर वरिंदर गर्ग जी। धन्यवाद जी। माननीय श्री प्रमोद कुमार जी, डॉक्टर प्रोफेसर करमजीत सिंह,
डॉक्टर प्रोफेसर गुरपाल सिंह और डॉक्टर प्रोफेसर गुलशन शर्मा जी। वैसे तो डॉक्टर करमजीत जी और डॉक्टर गुरपाल जी ने बड़े डिटेल में बताया और माने प्रमोद जी ने तो हम सबको इमोशनल ही कर दिया। बहुत ही, देखिए, एक होता है शाब्दिक ज्ञान देना, एक होता है दिल से दिल तक जाना। वो उन्होंने गीत के रूप में बात शुरू की और हमारी क्या अपेक्षा है उसकी, हमारे को भी उन्होंने एक चैलेंज दिया है कि सिर्फ ये डिस्कस करके नहीं चलेगा कि इंडियन ट्रेडिशन ऑफ विजडम क्या है, इसके लिए आगे भी काम करना पड़ेगा। जैसे कल हम चर्चा करते हुए बात हो रही थी कि 1.5 लाख मैन्युस्क्रिप्ट अभी भी भारत के स्कूल यूनिवर्सिटियों में, म्यूजियम्स में, आर्काइव्स में पड़ी हुई हैं जिन पे कोई काम नहीं हुआ। अगर भारत में ज्ञान की परंपरा की बात की जाए तो मुझे हमेशा एक स्टोरी, नचिकेता की कहानी ध्यान में आती है। एक 9 साल का बच्चा कैसे इन सर्च ऑफ विजडम यमलोक तक जाता है। जिस एज में बच्चे डिज्नीलैंड, चॉकलेट, कैंडी उसके पीछे भागते हैं, उस एज का बच्चा जीवन के रहस्य को सुलझाने के सवाल पूछता है। और जब हम भारतीय ट्रेडिशन की बात करते हैं, जैसे मैंने प्रमोद जी ने बहुत ही सुंदर और बढ़िया बताया, उसके बाद मेरे बोलने की जरूरत और स्थान बचता नहीं है, लेकिन मुझे गुलशन जी ने आदेश दिया है तो मैं 2 शब्द बोल रहा हूँ उन्हीं की, मैंने प्रमोद जी की। और वैसे भी ये मतलब डे लाइट में टॉर्च दिखाने वाली बात है, उनके उद्बोधन के बाद बोलना। तो अगर हम आज से 50 वर्ष पहले हमारे बुजुर्गों को देखें, घर में जो हमारे दादा दादी, नाना नानी होते थे, वो एक टीचर होते थे, एक कुक होते थे, एक न्यूट्रिशनिस्ट होते थे, हाइजीनिस्ट होते थे, डॉक्टर होते थे, बड़े अच्छे काउंसलर होते थे, बैंकर होते थे, एग्रीकल्चरिस्ट होते थे, वीवर होते थे, टेलर होते थे, कारपेंटर होते थे, इंटीरियर डेकोरेटर होते थे, सिंगर होते थे, स्टोरी टेलर होते थे। मतलब 2 व्यक्ति बुजुर्ग जिनको आज वेस्टर्न सोसाइटी के प्रभाव में हम ये सोचते कि ये सब वृद्धाश्रम जाने के योग्य है, वो व्यक्ति समाज के लिए कितने उपयोगी होते थे। वो भारतीय ज्ञान परंपरा की, भारतीय नॉलेज की, भारतीय ट्रेडिशन की चलती फिरती मूर्त होते थे। मतलब ऐसी किसी सर्विस इंडस्ट्री में, गुलशन जी से माफी मांगते हुए कहता हूं कि भारतीय परंपरा में देयर वाज नो स्कोप ऑफ एनी सर्विस इंडस्ट्री, because everybody was so skilled, so there was no need of any service industry. अगर हम थोड़ा सा हमारी मैन्युस्क्रिप्ट्स के डिटेल में जाएं तो हम पाएंगे कि जितनी साइंस हमें पढ़ाई जाती है उसकी हिस्ट्री रॉन्ग पढ़ाई जाती है। एटॉमिक थ्योरी ऑटो हॉर्न से नहीं शुरू हुई, 2600 वर्ष पहले के हमारे मैन्युस्क्रिप्ट्स में अणु, परमाणु, उनका पूरा तफसील से जिक्र है। न्यूटन से पहले ग्रेविटी के बारे में भास्कराचार्य ने 1200 वर्ष पहले तो लिख दिया था, उससे पहले ये वर्बल ट्रेडिशन में चलता था। मेडिसिन का फादर आचार्य चरक थे। विमान शास्त्र के ऊपर ऋषि भारद्वाज के ग्रंथ आज भी हैं। साइंस ऑफ विंड, विंड एनर्जी की, विंड की वेलोसिटी की हम बात करते हैं, उसके ऊपर कनव ऋषि का पूरा ग्रंथ है। यूनिवर्स की क्रिएशन के ऊपर ऋषि कपिल मुनि का पूरा एक ग्रंथ है जिसमें बिग बैंग थ्योरी, हमारी जो एवोल्यूशन ऑफ लाइफ थ्योरी, एवरीथिंग इज देयर। योगा आजकल सारी जो हमारी फिजियोथेरेपी, जो हमारी एरोबिक्स को क्रॉस कर गया है, पतंजलि जी का उसके ऊपर एक पूरा ग्रंथ उपलब्ध है। सर्जरी, सुश्रुत जी फादर ऑफ सर्जरी, ल्यूमिनेसेंस के ऊपर ब्राह्म मेहरा जी का पूरा एक ग्रंथ है। गैलेक्सी ओवल है, अर्थ स्फीरिकल है, एक सूर्य के द्वारे अर्थ कितना चक्कर लगाती है, कितने ग्रहों का कितना माप है, डायमीटर ऑफ द डिफरेंट planets, their distance from sun, everything is mentioned in our scriptures
which are 10 to 20 or 1,000-year old. Subatomic particles are described in detail. There is a very detailed description of nuclear weapons in Mahabharata. And there is a temple in south where you can see the pictures of the various stages of embryo, which are now this is my branch, we usually used to see by ultrasound. So, इंडिया के बारे में मैं 2-3 जो हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, हमारे जिन्होंने हमारे इस ट्रेडिशन को समाप्त किया और जिसको एक्नॉलेज किया, बिकॉज ड्यू टू द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इन्वेजन्स, जो कल भी नालंदा के कॉन्टेक्स्ट में बात हुई, अल्बर्ट आइंस्टाइन, who is considered as the most genius person of the modern era, what he mentioned about India and Indian tradition, that is, we owe a lot to ancient Indians, teaching us how to count, without which most modern scientific discoveries would have been impossible. जो भी माना प्रमोद जी ने हमें गीत में भी यही बात शामिल की और बताया. बिल डुरांट कहते हैं, India was the motherland of our race, and Sanskrit is the mother of the European languages. She was the mother of our philosophy, mother through the herbs of much of the mathematics, through the Buddha of the ideas embodied in Christianity, mother through the village community of self-government and democracy. Mother India is in many ways mother of us all. ये one of the most celebrated sociologist and historian बिल डुरांट केस फॉर इंडिया बुक में उन्होंने मेंशन किया है. और जो बात माने प्रमोद जी ने अभी हमसे रखी, तो बिल डुरांट भी उसी को कहते हैं, इंडिया विल टीच अस द टॉलरेंस एंड जेंटलनेस ऑफ मैच्योर माइंड, अंडरस्टैंडिंग स्पिरिट एंड ए यूनिफाइंग पैसिफाइंग लव फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग्स. सो ये बात अभी माने प्रमोद जी ने भी हमारे लिए रखी है. So this is our duty to revive this tradition of wisdom, to inculcate this tradition of wisdom in our families, in our children, in our own lives, and to enlighten the path for the entire world. अंतर्मन की यात्रा से बात शुरू हुई थी, जो बात प्रमोद जी ने भी कही, करमजीत जी और प्रोफेसर गुरपाल जी ने भी उसको बड़ा अध्यात्म के विषय में वर्णन किया. तो मैं तो यही निवेदन करूंगा कि हम लोगों को ये बिल डुरांट और ये अल्बर्ट आइंस्टाइन पढ़ाए ही नहीं जाते. हमें मैकॉले पढ़ाया जाता है, हमें ये पढ़ाया जाता है कि जो भारत के लोग शायद एक स्नेक चार्मर्स का कंट्री था, लेकिन नाउ वर्ल्ड इज लुकिंग टुवर्ड इंडिया. हम जब तक खुद जागृत नहीं होंगे, हम हमारा आत्म परिचय नहीं करेंगे, हम अपनी अंतर्मन की यात्रा नहीं शुरू करेंगे, तो हम वर्ल्ड को लीड नहीं कर पाएंगे. इसलिए मेरा यही एक निवेदन है, जो आज हमारे तीनों वक्ताओं ने, बड़े ज्ञानी वक्ताओं ने हमें जो भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में, ट्रेडिशन ऑफ विजडम के बारे में जो बातें बताई हैं, और माननीय प्रमोद जी ने जो हमको उसको कैसे अपनी प्रैक्टिकली लाइफ में इंप्लीमेंट करना है वो सूत्र दिया है, उस सूत्र को हम पकड़ें. बिकॉज जो सूत्र प्रैक्टिकल नॉलेज से आता है, उनका अपना जीवन हमारे लिए एक आदर्श जीवन है, तो वो एक हमेशा टाइम टेस्टेड टेक्नोलॉजी होती है, टाइम टेस्टेड विजडम होता है, तो हम उसको फॉलो करें. और कोई कारण नहीं है कि हमारा जो विजडम का ट्रेडिशन है, द इंडियन जीनियस है, वो निद्रा से नहीं उठेगा और दोबारा से वर्ल्ड को लीड नहीं करेगा. धन्यवाद. Thank you very much, Dr. Varinder Garg जी. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद अपने विचार शेयर करने के लिए और सबका धन्यवाद करने के लिए, और पूरे प्रोग्राम को एक निचोड़ में समापन और पूरा एक दिशा देने के लिए. Ladies and gentlemen, before we close this program today,
I convey my deep gratitude and thanks to all of my fellow panelists, my distinguished guests, esteemed guests, those who have joined, and very especially I wish to share रात के 11 बज चुके हैं और रात के 11 बजे कहां बज चुके हैं मलेशिया के अंदर the deputy chairman, the vice chairman, the Malaysian Chamber of Commerce, when I talk about Dato Ramesh Kodamalji, is watching this program. He just sent a message to me that such a wonderful program to understand India's genius and a tradition of the wisdom. At the same time, my deep regards and thanks to International Buddhist Confederation's Secretary General, Dr. Dhammapiya ji, and Asha ji, thanks for joining from Kuwait, this particular program. APG, thanks for joining from Doha. Vikas and Monit Pal, thanks for joining from Canada. At the same time, Professor Satendra Dhimanji, thanks for joining from Los Angeles. Professor Pontrip Narula from Bangkok, and a couple of other dignitaries, those have joined us. This entire program was live on the Facebook as well, and you can see it on the YouTube, and we are going on Instagram and then Twitter, and you'll be able to. Tomorrow is going to be another yet a wonderful packed day. Anthony Robbins, who is the highest paid motivator of the world today for motivating youth, children, those who have joined this particular program from world over, and all the educators, tomorrow evening, 7 p.m., you will be joined by Mr. P.S. Rathore, who does the fire walk, and he does the neuro-linguistic programming and couple of packaging on the motivation. All the children, you're going to have a wonderful program. Tomorrow evening is going to be dedicated to the entire younger generation, of course, along with our educators and our mentors. This evening, my deep regards, my deep bows and thanks to Shri Pramod ji, our Karamjit ji, and Gurpal ji, and Varinder ji, Dr. Varinder Garg ji. I'm so indebted, so grateful. Thank you very much, everybody. Namaskar, Shubh Ratri. सबको बहुत बहुत धन्यवाद. जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद. और सारे समक्ष from the world over, the people those joined us, thank you very much for sparing your time and to be a part of this program. Shubh Ratri, Shubh morning, Shubh afternoon, and everything nice for all of you. From India, Jai Hind. Jai Namaskar. Hind to all of you, and Namaskar, Namaskar, Namaskar. नमस्कार जी, Thank जय you. हिंद जी. Thank you, thank you, thank you very much. Thank you. चलो.